Hello dear students, myself Assistant Professor Milita Vanzare. In this video lecture, we are going to discuss about Basidiomycota. Basidiomycota, which is the class of fungi. These are the some general characteristics of Basidiomycota. Basidiomycota has about 30,000 species. About 30,000 species which are studied under the Basidiomycota, which includes mushroom forming fungi, jelly fungi, yeast, rust and smuts. These all are the examples of Basidiomycota fungi. Basidiomycota are unicellular as well as multicellular, and the reproduction occurs in Basidiomycota which is sexually as well as asexually. But the asexual reproduction in the Basidiomycota fungi which is very rare, and there is vegetative reproduction is also occurs. Vegetative reproduction occurs through by the fragmentation. These Basidiomycota fungi which play a multitude of ecological roles. Many mushroom forming fungi which is occurs under the Basidiomycota, they support the forest ecology through the formation of mycorrhizal symbiosis. These mushroom forming species which form symbiotic relationship. How? See in that picture. There is the plant and mushroom, both are present in same place. This mushroom see, here is the mushroom and the plants, and this mushroom forming mycelium, this mycelium which is growing on the plant roots, and this mycelium helps the plants for absorption of water and mineral nutrients. With the help of this mycelium, this plant root absorb water and mineral nutrients from the soil. So अभी ये प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो मशरूम के माइसेलियम है वो प्लांट्स को, रूट्स को हेल्प कर रहे हैं टू एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स. तो जो मशरूम है वो मशरूम प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हो गया. अभी प्लांट मशरूम के लिए कैसे हेल्पफुल होगा? ये जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो क्या फॉर्म करते हैं? कार्बोहाइड्रेट. और दिस कार्बोहाइड्रेट विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फंगाई फॉर द ग्रोइंग पर्पज. तो ये फंजाई क्या करते हैं? वो माइसेलियम से जो कार्बोहाइड्रेट है वो एब्सॉर्ब करते हैं. तो ऐसे ये माइसेलियम प्लांट्स के लिए भी यूज़फुल हो गए और फंजाई के लिए भी यूज़फुल हो गए. इसलिए वो क्या कर रहे हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं. Then next character, that is the Basidiomycetes also cause animal disease. Some Basidiomycetes के species है वो animal disease cause करते हैं, और some species which are harmful for the human also because they causes potentially lethal infection to human. And some Basidiomycota fungi which causes rust and smut diseases in the plants, means they are the most important pathogens of plants. Then Basidiomycota are easy to recognize under the light microscope. जो Basidiomycota है उसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वजह से वो अलग शो करते हैं. जैसे कि वो क्या फॉर्म करते हैं? क्लब शेप फ्रूटिंग बॉडी. ये जो फंगस है वो क्या कर रहा है? फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म कर रहा है. और फ्रूटिंग बॉडी कैसे दिखती है? क्लब शेप. क्लब शेप यानी कि अम्ब्रेला टाइप, और उसी को क्या कहा जाता है? बेसिडिया. These basidia which are the swollen terminal cell of hypa. Next, Basidiomycota produces spores called as a basidospores. जो Basidiomycota है वो क्या करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, उसको कहा जाता है बेसिडोस्पोर्स. जैसे एस्कोमाइकोटा जो स्पोर्स फॉर्म कर रहे थे उसको कहा जाता था एस्कोस्पोर्स. दिस बेसिडोस्पोर्स फॉर्म आउटसाइड ऑफ द सेल. जो एस्कोमाइकोटा के स्पोर्स थे वो इनसाइड द सेल थे, बट ये बेसिडोस्पोर्स कहाँ पे है? आउटसाइड ऑफ द सेल, दैट इज द एक्सोजिनस एंड कॉल्ड एज अ बेसिडिया. सी, दिस इज द बेसिडिया. और जो स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं वो कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं? आउटसाइड पे. जैसे कि ऐसे स्पोर्स जो है वो आउटसाइड पे फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए, और उन स्पोर्स को क्या कहा जाता है? बेसिडोस्पोर्स.
Then second common features of this group is the Dolichos septum that partitions successive compartments along the length of the Basidiomycetes hypha. This septum is performed by central canal pore that is defined by a barrel-shaped swelling of the septum cell wall. See, यहाँ पे क्या होता है, जो हाइफी प्रेजेंट होती है वो हाइफी में क्या होता है, सेप्टम। ऐसे सेप्टम्स कहाँ पाए जाते थे, एस्कोमाइकोटा में। लेकिन बेसिडोमाइकोटा में जो सेप्टम पाया जाता है और जो सेप्टम फॉर्म होते हैं वो सेप्टम्स के जो स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि ये हमारी ये फंजाई की हाइफा है और उसके जो सेप्टम है वो ऐसे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये जो दो सेप्टम है उसके बीच में जो गैप है उसको कहा जाता है डॉलिपोर सेप्टम। ऐसे जो बीच का जो गैप है उसके कहा जाता है, ये जो बीच का गैप है उसे कहा जाता है डॉलिपोर सेप्टम। क्योंकि वो डॉलिपोर सेप्टम क्या करता है, वो जो सेप्टा है उसको डिवाइड करता है और जो बीच में वो गैप क्रिएट करता है और उसे कहा जाता है सेंट्रल कैनल और पोर। और उसे जैसे बैरल शेप वो फॉर्म करता है, इसीलिए वो जो फॉर्म कर रहा है सेप्टम उसे कहा जाता है डॉलिपोर सेप्टम। और ये डॉलिपोर सेप्टम सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, अंडर द बेसिडोमाइकोटा ओनली। And the third character, that is the clamp connection, are the third character of this phylum. जो बेसिडोमाइकोटा है उसके तीन मेन कैरेक्टर्स है। क्या, कौन से मेन कैरेक्टर्स है, बेसिडोमाइकोटा जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उसको बेसिडोस्पोर्स कहा जाता है और जो बेसिडोस्पोर्स है वो कहाँ ग्रो होते हैं, आउटसाइड ऑफ द सेल्स। और जो सेकंड कॉमन फीचर्स है अंडर दिस बेसिडोमाइकोटा, देयर इज द प्रेजेंट ऑफ डॉलिपोर सेप्टम। वहाँ पे डॉलिपोर सेप्टम प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसके जो सेप्टम है वो बाकी जो फंजा है उसके सेप्टम से अलग होते हैं। और तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है कि इस बेसिडोमाइकोटा फंजा में क्लैम्प कनेक्शन दिखाई देता है। क्लैम्प कनेक्शन कैसे दिखाई देता है, वो कैसे होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूँगी। सी द लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडोमाइकोटा। See, every life cycle has two generations that alternate each other. अभी टू जनरेशन्स कौन सी है, गैमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हैप्लॉइड बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ सिंगल एन। सी, ये जो gametophytic generation and sporophytic generation. Under the gametophytic generation there is gametophytic generations क्या होती है, हैप्लॉइड। और जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन होती है वो होती है डिप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि सिंगल एन एंड डिप्लॉइड यानी कि 2n। अब ये अल्टरनेट जनरेशन कैसे फॉर्म होती है, ये जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो कैसे होते हैं और स्पोरोफाइटिक जनरेशन उसके बीच में कैसा, इन दोनों में क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे। जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है वो क्या कर रहा है, गैमेट्स फॉर्म कर रहा है आफ्टर द माइटोटिक फेज। अल्टरनेशन जनरेशन में क्या हो रहा है, जो गैमेटोफाइट्स है वो गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं आफ्टर द माइटोसिस फेज। फिर वो क्या कर रहे हैं, फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट, दिस गैमेट अंडरगो फर्टिलाइजेशन एंड to form zygote. This zygote which is diploid. Then this zygote after the mitosis phase form the sporophytic generation, and after meiosis phase this sporophytic generation produces spores, and these spores after the mitosis phase again forming the gametophage. इस प्रकार जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बेसिडोमाइकोटा का, उसमें क्या होता है, जो गैमेटोफाइट जनरेशन प्रेजेंट होता है। गैमेटोफाइट जनरेशन में जो न्यूक्लिया है वो सिंगल न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे हैप्लॉइड न्यूक्लिया कहा जाता है। तो गैमेटोफाइट में जो न्यूक्लिया है वो हैप्लॉइड न्यूक्लिया है। फिर गैमेटोफाइट का माइटोसिस होके क्या बनेगा, गैमेट्स फॉर्मेशन बनेगा। गैमेट होने के बाद
वो ये गैमेट फिर फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाएंगे, फिर जाइगोट का माइटोसिस होके वो क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइटिक। तो फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन ऑकर होगा और ये जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो डिप्लॉयड होगा क्योंकि उसमें 2n प्रेजेंट रहेंगे। फिर स्पोरोफाइटिक जनरेशन का अगेन मियोसिस होगा, मियोसिस होके वो क्या बनाएंगे, स्पोर्स। स्पोर्स बनाने के बाद ये स्पोर्स अगेन माइटोसिस फेज में चले जाएंगे। माइटोसिस में जाने के बाद ये स्पोर अगेन क्या फॉर्म करेंगे, गैमेटोफाइटिक जनरेशन। इस प्रकार जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाथवे है वो फॉर्म होगी। ये जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। फिर प्लाज्मोगामी और कैरियोगैमी, जो रिप्रोडक्शन स्टेजेस है बेसिडोमाइकोटा के, उसमें ये स्टेजेस पाए जाते हैं। फर्स्ट तो प्लाज्मोगैमी, अगेन कैरियोगैमी। जो बेसिडोमाइकोटा की लाइफ साइकिल है और रिप्रोडक्शन स्टेज है उसमें फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, प्लाज्मोगैमी। Plasmogamy is the stage in the sexual reproduction of fungi in which the protoplasm of two parent cells fuse together without the fusion of nuclei, effectively bringing two haploid nuclei close together in the same nuclei. अभी प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, दो पैरेंट सेल्स फ्यूज हो जाते हैं। सी यहाँ पे क्या हुआ है, दो पैरेंट सेल फ्यूज हुए हैं, लेकिन फ्यूज़ होने के बाद वो क्या करते हैं, न्यूक्लियाई उनका फ्यूज़ नहीं होता, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो रहा है। ये स्टेज में दो पेरेंट सेल क्लोज दिखाए गए हैं, लेकिन ये जो सेकंड फिगर है उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होके दिखाया गया है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, प्लाज्मोगैमी। जब स्टेज में सिर्फ प्लाज्मोगैमी और साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाते हैं, दो पेरेंट सेल के सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, तब उसे कहा जाता है प्लाज्मोगैमी। वहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होता, याद रखना, प्लाज्मोगैमी में सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है। और जो कैरियोगैमी है उसमें क्या होता है, कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इन द फंजाई। सी ये दो अलग अलग बेसिडोमाइकोटा के फंजाई हैं, उसमें क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियस है वो जब फ्यूज हो जाता है तब पहले उनमें क्या हो जाता है, प्लाज्मोगैमी, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है। फिर वो जो माइसेलियम है उसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, वो दो न्यूक्लियाई तुरंत फ्यूज नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं। जब वो माइसेलियम में एक सेप्टा में जब दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं तब उस स्टेज को कहा जाता है डाइकैरियन। जब डाइकैरियन फेज में क्या होता है, टू न्यूक्लियाई, दो अलग अलग माइसेलियम के दो न्यूक्लियाई एक ही सेप्टा में प्रेजेंट होते हैं। जब वो क्लोज आते हैं और उनका फ्यूजन बनता है, फिर वो एक न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, तो उससे उस स्टेज को कहा जाता है कैरियोगैमी। ये हो गई प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। तो ये दो स्टेजेस है, प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाता है, और कैरियोगैमी में जब न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं तब उस स्टेज को कैरियोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द माइसेलियम। In that there is primary mycelium and secondary mycelium. अब प्राइमरी माइसेलियम क्या होता है, जब माइसेलियम के सेप्टा में एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहता है तब उस स्टेज को कहा जाता है प्राइमरी माइसेलियम। सी यहाँ पे एक पैरेंट सेल दिखाई गई है, ये जो पॉजिटिव है एक पैरेंट सेल दिखाई गई है और ये दूसरे फंजाई की पैरेंट सेल है। जब ये दोनों पैरेंट सेल फ्यूज हो जाते हैं, जब तब उन दोनों के माइसेलियम के जो सेप्टम है उस सेप्टा में सिर्फ एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसलिए उस स्टेज को कहा जाता है प्राइमरी माइसेलियम। जब माइसेलियम में एक ही न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है तो वो प्राइमरी माइसेलियम होता है। बट प्राइमरी माइसेलियम होने के बाद उनमें क्या हो जाता है, सेकेंडरी माइसेलियम में क्या होता है, जब एक ही सेप्टा में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं N+N, तब उस स्टेज को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी माइसेलियम। यहाँ पर भी न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं हो रहे, सिर्फ एक सेप्टा में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मतलब N+N, इसलिए उस स्टेज को कहा जाता है सेकेंडरी माइसेलियम।
अब ये है क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन इज़ वेरी रेयर इन बेसिडोमाइकोटा। मतलब ये जो क्लैम्प कनेक्शन है वो सिर्फ बेसिडोमाइकोटा का जो फंजा है उसी में पाया जाता है। तो क्लैम्प कनेक्शन होता क्या है, विच इज़ बेसिकली हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मिंग बाय ग्रोइंग हाइफल सेल्स। जब हाइफी ग्रो हो जाती है तब उसमें एक हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तब उसे कहा जाता है क्लैम्प कनेक्शन। हुक लाइक स्ट्रक्चर लाइक सी, दिस इज कॉल्ड हुक लाइक स्ट्रक्चर। जो है ना, जैसे हुक जैसे दिख रहा है उसे कहा जाता है हुक लाइक स्ट्रक्चर। It is created ensure each cell or segment of hypa separated by septa receives a set of differing nuclei which are obtained through mating of hypae of differing sexual types। उसमें क्या हो जाता है, सी यहाँ पे एक माइसेलियम दिखाया है, सी यहाँ पे एक हाइपी दिखाई गई है। उस हाइपी के एक सेप्टा में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दो न्यूक्लियाई कब प्रेजेंट होते हैं, जब प्लाज्मोगैमी हो जाती है। प्लाज्मोगैमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं। साइटोप्लाज्म फ्यूज होने के बाद जब दो न्यूक्लियाई एक ही सेप्टम में आते हैं तब वाली ये स्टेज है। तब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई अपना एक कॉपी बनाता है। सी, ये येलो वाले ने अपनी एक कॉपी बनाई यहाँ पे और ग्रीन वाले न्यूक्लियाई ने भी अपनी एक कॉपी बनाई। तो एक सेप्टा में कितने न्यूक्लियाई हो गए, अभी 4। एक सेप्टा में 4 न्यूक्लियाई तो नहीं रह सकते, एक सेप्टा में सिर्फ 2 न्यूक्लियाई चाहिए। तो वो क्या करेंगे, वो जो है दूसरे सेप्टा में माइग्रेट हो जाएंगे। बट दूसरे सेप्टा में माइग्रेट होने के बाद होते टाइम वो क्या करेंगे, हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। वो ऐसे के ऐसे माइग्रेट नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, पहले ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, उसी से वो क्या करेंगे, दूसरे सेप्टा में माइग्रेट होंगे। ये जो दूसरा सेप्टा यहाँ पर होगा, यहाँ से वो यहाँ पे माइग्रेट हो जाएंगे। सी, थर्ड वाले हाइफी में क्या दिखा है, जो येलो वाला है वो यहाँ से माइग्रेट हो गया, लेकिन जो ग्रीन वाला है वो यहाँ से माइग्रेट नहीं होगा, वो हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके माइग्रेट होके यहाँ पे आएगा। सी, लास्ट वाले जो सेप्टम है अलग अलग सेप्टम दिखाए गए हैं और उस अलग अलग सेप्टम में दो न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। ये 2 न्यूक्लियाई कैसे फॉर्म हो गए, जो येलो वाला था वो येलो वाला माइग्रेट होके दूसरे वाले सेप्टम में आ गया और जो ग्रीन वाला था वो भी माइग्रेट होके दूसरे वाले सेप्टम में आएगा। लेकिन जब आने के टाइम पे वो जो हुक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है उसे कहा जाता है क्लैम्प कनेक्शन। ये जो क्लैम्प कनेक्शन है वो हर एक सेप्टा में पाया जाता है। यही बेसिडोमाइकोटा में एक वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर है जो सिर्फ बेसिडोमाइकोटा में ही पाया जाता है। देन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बेसिडोमाइकोटा। बेसिडोमाइकोटा के लाइफ साइकिल में क्या होगा, सी यहाँ पे एक नंबर दिखाया गया है, वहाँ पर 2 पेरेंट सेल है, एक पॉजिटिव मैटिंग टाइप और एक नेगेटिव मैटिंग टाइप। तो ये जो पेरेंट सेल है वो फ्यूज़ हो जाएगी। फ्यूज़ होने के बाद उसमें कौन सी स्टेज आएगी, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो जाता है। साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होने के बाद वो क्या करेंगे, ये जो माइसेलियम है वो बेसिडियोकार्प फॉर्म करेंगे। बेसिडियोकार्प में क्या होता है, डाइकैरियोटिक फेज। डाइकैरियोटिक फेज यानी कि जब वो न्यूक्लियाई सिर्फ N+N प्रेजेंट होता है, वो न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं होते, सिर्फ वो एक ही सेप्टा में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको डाइकैरियोटिक कहा जाता है। और उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो बेसिडियोकार्प जैसा, बेसिडियोकार्प कहा जाता है। जो अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके नीचे जो लाइन दिखाई गई है उसे कहा जाता है गिल्स लाइन विद बेसिडिया। तो पहले क्या हुआ, 2 पेरेंट सेल्स फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ होने के बाद उनमें प्लाज्मोगैमी हो गया, प्लाज्मोगैमी होने के बाद उन्होंने बेसिडियोकार्प फॉर्म किया। बेसिडियोकार्प फॉर्म होने के बाद अब क्या होगा, बेसिडिया फॉर्म होगा। बेसिडिया फॉर्म कैसे होगा, उनके जो बेसिडियम है उनमें क्या होंगे, 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट रहेंगे। अभी ये 2 न्यूक्लियाई को फ्यूज़ होना है। फ्यूज़ होना है मतलब उनमें कौन सी स्टेज आएगी, कैरियोगैमी। क्योंकि कैरियोगैमी के स्टेज में क्या हो जाता है, 2 न्यूक्लियाई जो है एक ही सेप्टा में वो फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ हो जाने के बाद वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई बनाएंगे। डिप्लॉयड न्यूक्लियाई को ही क्या कहा जाता है, बेसिडियोस्पोर्स, क्योंकि वो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले हैं। आफ्टर द मियोसिस पोर्स ये क्या करेंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई वो स्पोर्स फॉर्म करेंगे। सी, यहाँ पे 6 नंबर पे दिखाया गया है कि मियोसिस होके
जो स्पोर्स बने हैं, जो बॉडी बनी है उसमें क्या है, बेसिडियम कंटेनिंग 4 हैप्लॉइड न्यूक्लिया। जो बेसिडियम है उसमें 4 न्यूक्लिया दिखाए गए हैं। अभी ये माइग्रेट होंगे। माइग्रेट कैसे होंगे, बेसिडियम विथ 4 अपेंडेजेस। अभी ये यहाँ पे दिखाया गया है एरो से कि जो बॉडी है बेसिडियम है, जो बेसिडियम के आउटसाइड पे क्या हुआ है, जो स्पोर्स फॉर्म हो गए हैं और जो स्पोर्स है वो स्पोर्स माइग्रेट होंगे। तो माइग्रेट होने के बाद वो क्या करेंगे, बेसिडियो स्पोर्स दिखाए गए और जो बेसिडियो स्पोर्स, जो स्पोर्स माइग्रेट होंगे वो हैप्लॉइड रहेंगे। हैप्लॉइड होने के बाद वो क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे। जब जर्मिनेट करने के बाद वो हैप्लॉइड माइसिलिया रहेगी। अब ये सिंगल यंग माइसिलिया रहेगी हैप्लॉइड, वो अगेन दूसरे किसी माइसिलिया से कांटेक्ट करेगी और फिर उनमें जो है वो जो फ्यूजन हो जाएगा और फिर से ये जो स्टेज है पूरी लाइफ साइकिल है वो रिपीट हो जाएगी। तो पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। प्लाज्मोगैमी के बाद वो क्या करते हैं, बेसिडियोकार्प फॉर्म करते हैं, उसमें डाइकैरियोटिक फेज होती है। फिर वो कैरियोगैमिक स्टेज में आ जाते हैं। कैरियोगैमी में उनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद एक ही सेप्टा में 4 न्यूक्लिया प्रेजेंट होते हैं। फिर वो 4 न्यूक्लिया माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट होने के बाद उनके जो स्पोर्स है वो बेसिडियम के आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं और वो जो स्पोर्स है वो माइग्रेट होंगे। माइग्रेट होने के बाद वो क्या होंगे, वो हैप्लॉइड रहेंगे। हैप्लॉइड होने के बाद वो अगेन दूसरे किसी फंगस से कांटेक्ट करेंगे। इस प्रकार बेसिडियोमाइकोटा की जो लाइफ साइकिल। These 3 are the important examples of Basidiomycota. First one is the Agaricomycotina, which is mushroom forming fungi. First picture which is showing mushroom forming fungi. Second example is the Puccinomycotina, which cause the disease rust on the plant. Second one is the picture of rust. Rust is present on the leaf, which is causing or which is harmful for the plants. Third one is the Astilaginomycota, which is causing smut. Smut is a disease which is present on the maize. On the third picture, the smut is occurring or growing on the maize.